Hello students, good morning all of you. Students, in previous video I have explained lots of concept of chapter 6, that is corresponding angle axiom. And students, in this video today I will discuss the converse of corresponding angle axiom, and as well as lots of theorem has given which you have to prove. Then after we will start the exercise. Okay, so here first so today I will discuss the converse of corresponding angle axioms. So student, you are all know that what is axiom. An axiom is a proven statement which is used to prove अनदर स्टेटमेंट. बच्चों, एक्सियम एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो पहले से ही प्रूव होता है. बच्चों, देयर इज नो नीड टू बी प्रूव्ड. एंड स्टूडेंट, दिस स्टेटमेंट इज कैन बी फर्दर यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट. ओके, नाउ स्टूडेंट, you are all know also that what is corresponding angle axiom. So student, I have explained in previous video that when the corresponding angle have formed, when two lines, when a transversal intersect two lines, then four pair of corresponding angle are formed. Okay, and when a transversal intersects two parallel line, listen carefully student, when a transversal intersects two parallel line, then each pair of corresponding angles are equal. Okay, so here we can say that angle 2 is equal to angle 6, angle 1 is equal to angle 5, angle 3 is equal to angle 7, and angle 5 is equal to, angle 4 is equal to angle 8. This is called the concept of corresponding angle axiom, which is very useful to prove the theorem which has given after this concept. So here I am writing the concept of converse of corresponding angle axiom. बच्चों, converse means opposite होता है. ठीक है, so we can write here, if a transversal intersects two lines, student listen carefully, that there is a some minor difference between corresponding angle axiom and converse of corresponding angle axioms. So student, in corresponding angle axiom we have to write, if a transversal intersects two parallel line. बच्चों, corresponding angle axiom में हम कहते हैं कि when a transversal intersects two parallel line, पहले से parallel line दिया होता है, then each pair of corresponding angles are equal. और इसमें क्या लिखा जाता है, if a transversal intersects two lines. समझ में आ रहा है? तो there is a little bit difference between corresponding angle axiom and converse of corresponding angles axiom. So here we can write, if a transversal intersects two lines and a pair of corresponding angles are equal, then the two lines are पैरेलल. ओके स्टूडेंट, तो इसमें बच्चों क्या आपको बता दिया रहेगा कि जब किसी दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है, जब किसी टू लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है बच्चों, दिस इज द ट्रांसवर्सल एंड दिस इज द टू लाइन AB and here CD, and this is the transversal P and Q, and a pair of corresponding angles are equal, for example 1 and 2, then the two lines are parallel to each other. So here we can write, here from figure, transversal
a transversal PQ is a transversal intersects two lines AB and CD and also given one angle and also given corresponding angle corresponding angles, angle 1 is equal to angle 2, then we can say that lines AB is parallel to CD. Okay, so student, this concept will use in question when the question have given that you have to prove that the if in question have given that if a transversal intersect two lines and as well as the corresponding angles are also equal, then you have to prove that the lines are parallel to each other. Okay, so बच्चों इस कॉन्सेप्ट को तब हम यूज़ करेंगे जब किसी टू लाइंस को पैरेलल प्रूव करना होगा. नाउ स्टूडेंट, वी आर मूविंग द नेक्स्ट part of this chapter, that is the last of theorem has given, so we will prove one by one. So student, before moving the next theorems, you have to write this converse of corresponding angle axiom after the corresponding angle axiom. बच्चों, corresponding angle axiom आपने जहाँ लिखा था वहाँ उसके बाद ये वाला आपको टॉपिक लिखना है. Then after you have to write the theorems. Okay, so please pause the video to note it down in your copy or take a screenshot. Now student, we are moving the theorems of this chapter, and student, in previous video I have proved the theorem 6.1, which is based on the vertically opposite angle theorem. So if you have any doubt, so please see the video of vertically opposite angle. Now student, the theorem 6.2 has in this theorem the statement has given that if a transversal intersects two parallel lines. Student, listen carefully, you have to read the statement very carefully. बच्चों, आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और इसमें जो जो कंडीशन दी होती हैं उनका यूज़ करना होता है. जैसे यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, इफ़ आ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन, तो इसका मतलब है बच्चों कि पहले से पैरेलल लाइन दिया हुआ है और आपको मालूम है कि करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम्स तभी होल्ड करता है जब किसी टू पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है. समझ में आ रहा है? तो ये एक्सियम आप तभी यूज़ कर पाएंगे जब आपके स्टेटमेंट में टू पैरेलल लाइन्स दिया होगा. ठीक है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल. तो हमें प्रूव क्या करना है बच्चों कि एंगल 1 और एंगल 2, दिस एंगल इज कॉल्ड इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. 1 और 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे और 3 और 4 भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे और इनको हमें प्रूव करना है. देन आफ्टर वी विल यूज टू दिस कॉन्सेप्ट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज. ओके बच्चों, जब थ्योरम्स, आपको मालूम है थ्योरम विल बी थ्योरम इज अ स्टेटमेंट विच वी हैव टू प्रूव. थ्योरम एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको हमें प्रूव करना होता है. तो थ्योरम प्रूव करने के बाद जब हम इस थ्योरम को प्रूव कर लेंगे बच्चों, तो इसका यूज़ भी हम यूज़ करेंगे जहां आप क्वेश्चन में जैसे कंडीशन दी होंगी, इस टाइप की कंडीशन दी होंगी, तो इसका भी यूज़ हम करेंगे. देन आप फर्स्ट बट बिफोर वी हैव टू प्रूव दिस थ्योरम. ओके, नाउ हियर वी कैन राइट गिवन दैट, इसमें दिया क्या है बच्चों, a transversal intersects lines AB parallel to CD. Okay, and to prove that, and we have to prove that angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4. तो बच्चों यही तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और इन्हीं को हमें प्रूव करना है. नाउ आई एम स्टार्टिंग द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम. सो हियर फ्रॉम फिगर वी कैन राइट हियर फ्रॉम फिगर, since
line AB is parallel to CD and a transversal intersects lines AB and CD given, ये दिया हुआ है बच्चों. Then we can write angle 1 is equal to angle 5. ध्यान से देखिए बच्चों, एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होगा. ये कैसे, ये किस कॉन्सेप्ट से इक्वल होगा बच्चों? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस? सो वी कैन से दैट बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम्स, है ना बच्चों. इसमें आपने करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम का यूज़ किया है कि जब किसी टू पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. इसका मतलब 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा. दिस इज, यू कैन रिज्यूम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेंगे. एंड आल्सो अब देखिए बच्चों, इसमें एक और कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे हम. एंड आल्सो 5 इक्वल टू कितने, 2 इक्वल टू किसके इक्वल होगा बच्चों? 5 के. देखिए ध्यान से, 2 और 5 इक्वल होंगे. क्यों इक्वल होंगे? बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से. आपको मालूम है कि जब टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं ऑफ अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, देन ईच पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि 2 इक्वल टू 5 हो जाएगा. अब देखिए बच्चों, दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड को देखिए, दोनों सेम है ना. सो वी कैन राइट इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट. तो बच्चों ऐसे कंडीशन में जब किसी दो इक्वेशन के राइट हैंड साइड इक्वल होते हैं बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाते हैं. सो वी कैन राइट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड दिस वी हैव टू प्रूव दैट. बच्चों देखिए 1 इक्वल टू 2 प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो चुका है. ओके. एंड स्टूडेंट, you have to prove the angle 3 is equal to angle 4. So the process is same. Okay, when the process is same, then you have to write that similarly we can prove that angle 3 is equal to angle 4. Hence we can say that this theorem has been proved. So we can write hence proof. बच्चों ये थ्योरम भी आपको कॉपी में लिखने हैं, थ्योरम्स का प्रूफ, क्योंकि सम टाइम इन एग्जामिनेशन दिस थ्योरम विल बी आस्क्ड इन योर क्वेश्चन पेपर. बच्चों कुछ क्वेश्चन आते हैं जो थ्योरम पे बेस्ड होते हैं, है ना. यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से बनाया जा सकता है कि यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा. देखिए इसके आगे लिख देंगे प्रूव दैट. समझ में आ रहा है? प्रूव दैट इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल. तो ये ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं जिससे आपको करना होता है सोल्यूशन में. सो स्टूडेंट राइट ऑल दिस थ्योरम विद प्रूफ एंड स्टूडेंट द फिगर इज कंपल्सरी. मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि ज्योमेट्री चैप्टर फिगर्स इज कंपल्सरी एंड यू हैव टू ड्रा द फिगर बाय पेंसिल एंड अ स्केल. आपको पेंसिल स्केल से फिगर बनाना रहेगा. नाउ स्टूडेंट वी आर मूविंग द नेक्स्ट थ्योरम, बट बिफोर मूविंग द नेक्स्ट थ्योरम राइट ऑल दिस स्टेप्स ऑफ थ्योरम इन योर कॉपी बिफोर वाचिंग आफ्टर आर टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थ्योरम. ओके. नाउ स्टूडेंट वी आर मूविंग द नेक्स्ट थ्योरम, दैट इज theorem 6.3. and student this theorem is also called the converse of थ्योरम 6.2. बच्चों ये थ्योरम 6.2 का जस्ट कन्वर्स है. जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे थ्योरम्स आते जा रहे हैं या कोई एग्जाम आ रहा है उसका कन्वर्स भी आ रहा है बच्चों. तो एक बात अपने माइंड में अपने जो है कीप इन माइंड दिस कॉन्सेप्ट दैट द कन्वर्स इज रिलेटेड टू यू हैव टू प्रूव द लाइंस आर पैरेलल. बच्चों कन्वर्स थ्योरम तब यूज करते हैं जब किसी टू लाइंस को पैरेलल शो करना होता है. समझ में आ रहा है? जैसे आपने देखा था लीनियर पेयर ऑफ एंगल में आपको उस जब इफ अ रे एक्सटेंड्स, इसमें क्या था बच्चों,
कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल में क्या था, व्हेन इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ, नहीं इसमें था कि जब किन्हीं टू एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, देन द रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन। ये तो था कि जब किसी दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है बच्चों, तो वो जो रे स्टैंड करती है यानी खड़ी होती है, वो एक लाइन पे खड़ी होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कन्वर्स का आप जो है यही यूज़ होता है जब आपको लाइन प्रूव करना होता है ना, या टू लाइंस को पैरेलल प्रूव करना होता है। तो यहाँ पे भी देखिए स्टेटमेंट में भी वही लिखा है, जैसे आपने करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम में देखा था, कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम में, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस। अब देखिए बच्चों, इसके पहले जो थ्योरम था 6.2, उसमें क्या लिखा था, टू पैरेलल लाइन लिखा था। समझ में आ रहा है? तो यही सब डिफरेंस आपको याद रखना है कि जब किसी क्वेश्चन में टू पैरेलल लाइन दिया होगा बच्चों, तब उसमें हम पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट यानी थ्योरम या एक्सियम यूज करेंगे। और जब किसी क्वेश्चन में टू लाइन ओनली दिया रहेगा और लास्ट में प्रूव करना रहेगा पैरेलल, ठीक है, तब हम कन्वर्स ऑफ थ्योरम प्रूफ यूज करेंगे, ठीक है। सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। तो इसका मतलब बच्चों इसमें एक ट्रांसवर्सल है, इसमें ट्रांसवर्सल यहाँ पर मान लेते हैं ये जो लाइन है वो ए बी है ना, दिस लाइन इज सी डी एंड दिस ट्रांसवर्सल वी हैव टू अज्यूम पी क्यू। और साथ में ये भी दिया हुआ है कि 1 और 2 इक्वल है। एंगल 1 और 2 क्या है बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और 3 और 4 भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है और इक्वल भी है साथ में। तो हमें प्रूव करना है लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सो हियर वी कैन राइट गिवन दैट a transversal PQ intersects two lines AB and CD, and also given alternate interior angle is equal, that is 1 is equal to 2 and 3 is equal to 4. So we have to prove that, we can write here to prove that, क्या प्रूव करना है बच्चों, लाइन्स ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। तो बच्चों ये हमें प्रूव करना है। अब आपको मैंने कुछ देर पहले बताया था कि जब ऐसे सिचुएशन में कि हमें लाइन को पैरेलल प्रूव करना होगा बच्चों, तब हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम प्रूव करेंगे, यूज करेंगे बच्चों, तभी ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, प्रूव हो जाएंगी। और सबसे जरूरी क्या है कि उस थ्योरम का, उस एक्सियम का बच्चों हमें कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए उस कॉन्सेप्ट के जो है जो स्टेप्स उसमें दिए गए थे, कि उसमें स्टेटमेंट क्या था बच्चों, कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम का स्टेटमेंट क्या था कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस and a pair of corresponding angles is equal, then we can say that the two lines are parallel to each other. तो वहां पर corresponding angle भी equal होगा, then after we will use, okay. So now we can write here from figure angle 1 इज इक्वल टू एंगल 2। बच्चों देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है। ये कहाँ से है बच्चों, गिवन, ये देखिए दिया हुआ है ना, पहले से दिया हुआ है। तो हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब देखिए बच्चों 2 इक्वल टू 5 होगा, सिंस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं। अब ये कैसे होगा बच्चों, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, इक्वेशन नंबर 3। तो देखा आपने
2 इक्वल टू 5 क्यों होगा? क्योंकि आपको मालूम है कि इफ टू लाइन इंटरसेक्ट at common initial point then each pair of vertically opposite angles are equal. This is the theorem number 6.1. समझ में आ रहा है? ये थ्योरम 6.1 है बच्चों। तो हम इसका यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं? बिकॉज वी हैव प्रूव्ड, हमने प्रूव किया है इसको। ठीक है। नाउ स्टूडेंट इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को देखिए। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में भी एंगल 2 लिखा हुआ है और थर्ड में भी एंगल 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब कि दोनों इक्वेशन के राइट हैंड पार्ट इक्वल है। सो हियर वी कैन राइट इक्वेटिंग। आपको मालूम है कि जब किसी इक्वेशन के राइट हैंड साइड इक्वल होते हैं बच्चों तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होता है। सो वी कैन राइट इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 लिख सकते हैं। देखिए 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो 1 और इक्वल टू 5 हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू 5। तो बच्चों ध्यान से देखिए, अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 के इक्वल हो गया। तो बच्चों ये कौन सा एंगल है? ये किस टाइप का एंगल है? ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल है। समझ में आ रहा है? करस्पॉन्डिंग एंगल मैंने आपको बताया था कि करस्पॉन्डिंग एंगल का फॉर्मेशन कब होता है? जब किसी 2 लाइंस को, अब मैं 2 लाइंस बोल रहा हूँ, 2 लाइंस पैरेलल भी हो सकती है, नॉन पैरेलल भी हो सकती हैं। जब किसी 2 लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है देन 4 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पर बच्चों ये एंगल कौन सा एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। और साथ ही साथ ये भी प्रूव कर दिया मैंने कि ये इक्वल भी है। तब हम यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं? कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम यूज कर सकते हैं कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 लाइंस एंड a pair of corresponding angles are equal, then we can say that the 2 lines are parallel to each other. समझ में आ गया? यहाँ पर मैंने क्या प्रूव किया कि एंगल 1 और 5 इक्वल हो गया। और ये कौन से एंगल थे बच्चों? करस्पॉन्डिंग एंगल थे। और साथ ही साथ मैंने प्रूव कर दिया कि ये दोनों इक्वल भी हैं। Then we can say that from the concept of converse of corresponding angle axiom कि ये दोनों लाइन भी पैरेलल हो जाएंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे which is corresponding, और ये कौन सी बच्चों इसके आगे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये दोनों एंगल कौन सा एंगल हैं? which is corresponding angles. Okay, so here we can write then from converse of corresponding angles axiom we can say that then from converse of corresponding angle axiom lines AB is parallel to line CD। बस इतना आप लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा कि आपने कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम का यूज करके ये लिखा है। क्योंकि कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम यही कहता है बच्चों कि जब किसी 2 लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं बच्चों तो वो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सब थ्योरम इसलिए बनाया गया है बच्चों, कन्वर्स इसलिए बनाया गया है कि जब हमें किसी लाइंस को पैरेलल प्रूव करना होता है। सो हेंस वी कैन से दैट दिस थ्योरम इज प्रूव्ड। सो वी कैन राइट हेंस प्रूव्ड। Okay, now student we are moving the next theorem, but before moving the next theorem pause the video to note it down in your copy or take a screenshot. Now student we are moving the next theorem, that is 6.4 theorem, and student this theorem belongs the concept of एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। बच्चों जब मैंने आपको करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम का कॉन्सेप्ट बताया था उसमें बहुत सारे एंगल्स बताए थे कि जब किसी 2 लाइंस को एक 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है, या हम ये कह सकते हैं जब किसी 2 लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है बच्चों तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता था। साथ ही साथ एंगल ऑन सेम साइड, बच्चों ये सेम साइड होता है तो एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी बनता था, ऐसे ये वाला एंगल भी बनता था। ठीक है, तो इसको हम एक और नाम हमने बताया था को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं इसको। एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इतने लंबे चौड़े को बोलने से अच्छा आप ये भी बोल सकते हैं को इंटीरियर एंगल्स।
को इंटीरियर एंगल्स कब बनता है बच्चों? जब टू लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करती है। देन वी कैन से दैट द एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर बच्चों थ्योरम में क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन, बच्चों यहाँ पे देखिए पैरेलल लाइन दिया हुआ है, तो हम पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो बच्चों सप्लीमेंट्री क्या होता है? सबसे पहले आप जानिए सप्लीमेंट्री क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है बच्चों जब किसी दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। समझ में आ रहा है? जब किसी दो एंगल का सम, जैसे मान लीजिए ये एंगल है ना, ये 60 डिग्री है और ये 120 डिग्री है, तो इन दोनों का सम कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री। देन वी कैन से दैट these एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल। यानी हमें प्रूव क्या करना है बच्चों? प्रूव ये करना है कि एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होगा बच्चों? 1 और 4 होगा कि नहीं होगा? एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 1 और 4 होगा ना बच्चों, देखिए। और 3 और 2 दूसरा एंगल ये होगा, इनका सम यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? Then each pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary का मतलब इन दोनों एंगल का सम 180 हमें प्रूव करना है। समझ में आ गया? सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ही होता है दो एंगल का सम 180 प्रूव करना होता है, और इस प्रॉपर्टी को हम को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं को इंटीरियर एंगल्स। बच्चों ये एक कॉन्सेप्ट है, जैसे आपको मालूम है कि एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल को हम क्या कहते हैं? को इंटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक उसी तरह से इस पूरे थ्योरम्स को हम इस प्रॉपर्टी के नाम से जानेंगे आगे। जब हमें इस थ्योरम का यूज़ करना होगा बच्चों, तो हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ये इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बाई को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वही होती है कि जब किसी टू पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट करती है बच्चों, देन ईच पेयर ऑफ एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। और ये थ्योरम हम जब यूज़ करेंगे, देन वी कैन राइट द रीज़न बिहाइंड द स्टेटमेंट दैट वी यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। तब हम लिखेंगे कि हम को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे लिखा क्या है? गिवन दैट, क्या इसमें क्या क्या दिया हुआ है? आ ट्रांसवर्सल पी क्यू इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी, ओके, एंड आल्सो गिवन। और इसमें और कुछ नहीं दिया बच्चों, कुछ नहीं दिया है। आपको प्रूव क्या करना है? वी कैन राइट हियर टू प्रूव दैट एंगल 1 और एंगल 4। बच्चों एंगल 1 4 कौन सा एंगल है? एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और इज सप्लीमेंट्री का मतलब इसको हमें 1 + 4 का सम 180 दिखाना है। और दूसरा इसमें होगा एंगल 3 प्लस, सॉरी इसमें नहीं सही है, एंगल 2 + एंगल 3, इसका सम भी हमें 180 दिखाना है। नाउ आई एम राइटिंग द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। सो स्टूडेंट कीप इन माइंड ऑल द कॉन्सेप्ट दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये सभी थ्योरम्स एग्जाम का यूज़ करके ही हम इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए इसमें बच्चों 1 + 4 का सम हमें 180 दिखाना है, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे अगर हम एंगल 5 इसको हम बना दें, तो देखिए 1 + 1 = 2 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 1 = 2 क्या है बच्चों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो हम लिख सकते हैं 1 = 2। और 2 + 4 कितना होगा बच्चों? 2 + 4 क्या होगा बच्चों? 180 होगा कि नहीं होगा? तो 1 की जगह पे जब हम 2 की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो ये थ्योरम प्रूव हो जाएगा। और ये 180 क्यों होगा बच्चों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, LPS है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या कहता है बच्चों? इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, then the sum of two adjacent angle is
मेजर 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये लाइन CD को देखिए बच्चों, CD लाइन पे ये ट्रांसवर्सल जो देख रहे हैं आप, इसमें 2 और 4 एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल है ना, और इनका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे स्टैंड कर रही है, इसलिए इसका सम 180 डिग्री होगा। और ये कॉन्सेप्ट क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल कॉन्सेप्ट होता है। सो हियर वी कैन राइट हियर फ्रॉम फिगर एंगल 1 क्या लिख सकते हैं, ट्रांसवर्सल intersects lines AB and CD which is parallel to each other, और दोनों एक दूसरे से क्या है बच्चों, पैरेलल भी हैं। नाउ अब हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, 3 इक्वल टू एंगल 4। तो अभी 3 इक्वल टू 4 नहीं लिखेंगे बच्चों, यहाँ नाउ नहीं लिखेंगे, यहाँ देन लिखेंगे, क्योंकि हमने रिजल्ट एक लिखा है। देन वी कैन से दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। और ये कहाँ से आया बच्चों, बाई, अब ये कौन सा थ्योरम है बच्चों जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, ये थ्योरम नंबर 6.2 है बच्चों, समझ में आ रहा है। 6.2 थ्योरम क्या कहता है, रिकॉल द थ्योरम 6.2, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि जब दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है बच्चों, तो एंगल इंटीरियर एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो 1 इक्वल टू 2 लिखा मैंने, तो यहाँ पर लिखा है 1 इक्वल टू 2 बाई अल्टरनेट, देखिए यहाँ पे AL के बाद डॉट लगाया, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। तो ये बच्चों शॉर्ट फॉर्म है, AL के बाद डॉट लगाइए, अल्टरनेट हो गया, INT के बाद डॉट लगाइए, इंटीरियर हो गया, एंगल का साइन बनाइए, सिंबल बनाइए बच्चों, एंगल का सिंबल इस तरह होता है आपको मालूम है, और एक अपॉस्ट्रोफी कामा लगाएंगे हम, और S लिखेंगे। और इतना आपने अगर लिख दिया बच्चों तो ये इतना कंप्लीट हो जाएगा रीजन में, या आपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, ठीक है। एंड आल्सो वी कैन से दैट एंगल 2 इक्वल टू 2 और 4 का सम कितना होगा बच्चों, एंगल 2 प्लस 4 इज इक्वल टू, एंड आल्सो 2 प्लस 4 इक्वल टू 180 डिग्री होगा, इक्वेशन नंबर 2। और ये कहाँ से आया बच्चों, बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल प्रॉपर्टी, इसको L.P.A भी लिख सकते हैं बच्चों, है ना। तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल प्रॉपर्टी यूज़ किया हमने, क्योंकि 2 और 4 क्या है बच्चों, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, अभी मैंने बताया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन, तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। अब हम यूज़ करेंगे बच्चों, कैसे यूज़ करेंगे, देखिए बहुत इजी है। 2 की जगह पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने लिखा है 1 इक्वल टू 2, और 2 की जगह पे, एंगल 2 की जगह पे हम क्या लिख देंगे बच्चों, 1। तो एंगल 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए 1 प्लस 4 180 क्यों हो गया, क्योंकि 4 तो है ही है, और 2 यहाँ पर 2 की जगह पे मैंने 1 लिखा है, समझ में आ रहा है। क्योंकि 1 इक्वल टू 2 है, तो हम एंगल 2 की जगह पे 1 लिख सकते हैं, और यही हमें बच्चों प्रूव करना था। देखिए फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया। देन आपका जो सेकंड पार्ट है बच्चों, उसका भी प्रोसेस सेम है, स्टेप सेम है। सो अगेन वी कैन राइट सिमिलरली we can prove that
क्या प्रूव कर सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इस तरह से ये थ्योरम भी प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया बच्चों। नाउ स्टूडेंट, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल प्रूव द थ्योरम नंबर 6.5 and 6.6. then after we will solve the numeral problem of exercise 6.2. so student, thanks for being with us.